of light. रिकॉर्डिंग ऑन कर दो. Fraction of light. Diffraction is the phenomena of. Diffraction is the phenomena of. Diffraction is the phenomena of bending of light due to change in medium through which it propagates. If a ray of light is incident obliquely, if ray of light is incident obliquely, if ray of light is incident obliquely, if ray of light is incident obliquely as shown, the speed of light changes as it moves from one medium to another. Speed of light changes as it moves from one medium to another. And due to change in speed, the path of light also changes. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, सर चेंज इन स्पीड की वजह से पाथ में चेंज करते हैं. रट सकते हो तो रट लो बिकॉज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल. फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आपके लेवल का है नहीं वैसे अभी. फॉर्मेट्स प्रिंसिपल होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्लैब है या चेंज इन मीडियम हो रहा है, ये पाथ ट्रेवल पे. एयर में अगर से ए से बी तक जाने में टाइम टी लगता है, इस विड्थ को क्रॉस करने में समझ लो टाइम टी लगता है, इस विड्थ डी को क्रॉस करने में. अगर स्पीड कम हो जाए तो टाइम सेम कब लगेगा? अगर स्पीड कम हो रही है तो हम पाथ को भी कम कर दें या पाथ को बढ़ा दें? हम कर दें. कम कर दे. तो ये थोड़े छोटे पाथ में ट्रैवल करता है. फिर अगर स्पीड कम हो गई तो ये अपना पाथ भी छोटा कर देता है. Whereas अगर हम बात करें से स्पीड बढ़ गई है, डेंसर मीडियम था इसमें स्पीड कम थी, रेयर में ज्यादा थी, तो रेयर मीडियम में जब स्पीड बढ़ गई टाइम सेम कब रहेगा? व्हेन इट ट्रैवल्स टू सेम पाथ और लॉन्गर पाथ. लॉन्ग होता है. लॉन्ग. तो फिर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. बट ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल होता है. फॉर्मेट्स प्रिंसिपल हम 9th 11th में करते नहीं है, 11th 12th में, तो इसलिए मैंने बताया नहीं कि इसका रीजन क्या होता है कि टाइम टेकन शुड बी सेम या ऑप्टिमम कहते हैं हम उसको. तो फिर मैं अगर ऑप्टिमम वर्ड यूज करता फिर आप उसमें कंफ्यूज होते, तो इसलिए हम उसको रहने देते हैं ऐसे, बिकॉज उसका कहीं यूज होना नहीं आगे. इस केस में अगर मैं आपसे डेविएशन पूछूं, डेविएशन कितनी है? बिकॉज अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा. So deviation is I minus R. This is with light moving from rarer to denser. So it bends towards normal. ये normal है, normal की तरफ bend कर गई.
अगर हमारे पास ऑपोजिट केस होता, लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये इसका एक्चुअल पाथ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. And deviation angle is r minus I. ये दोनों डायग्राम बना लो. डेंसर से रेयरर में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल. And if light is incident normally, अगर ऐसे इंसिडेंट हो along the normal, सर उसमें डेविएशन I zero तो R भी zero. No change in path takes place when light is incident normally. वो oblique incidence के केस होते हैं. So you can write when light is incident normally, when light is incident normally, no change in path takes place. No change in path takes place. No change in path takes place. Then you write refractive index. Refractive index. It's denoted by mu. Refractive index of a medium is the ratio of this is called absolute refractive index. It's the ratio of speed of light in vacuum बिकॉज हम एयर और वैक्यूम में स्पीड सेम लेते हैं तो म्यू कितना हो जाएगा. वैक्यूम और एयर में अगर स्पीड सेम ही लेते हैं तो फॉर एयर म्यू इज 1 दो वैल्यूज और याद रखनी पड़ेंगी. अगर नहीं गिवन तो ये यूज करनी है. Then you write relative refractive index. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 2μ1 relative refractive index. It is the ratio of refractive index of one medium with it is the ratio of refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1. It is the ratio of refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1. To the refractive index of medium 1. सो ये रिपीट करना है.
It is the ratio of refractive index of second medium to the refractive index of medium 1. There is 2 mu 1 को हम लिख देते हैं mu 2 by mu 1. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. The V1 and V2 denotes velocity in first medium and second medium. First and second medium respectively. अगर मैं आपसे पूछूं से for example refractive index of glass with respect to water. Glass relative to water. So you can say relative to water, glass relative to water. It's mu g by mu w. Mu g is 3 by 2. So it will be 9 by 8. और अगर वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होता तो 8 by 9 हो जाता. अच्छा, रिफ्रैक्शन में फेज चेंज होता है, फेज ऑफ अ वेव, या रिफ्लेक्शन में फेज चेंज होता है? इसके नीचे नोट में लिखो, whenever ray of light suffers refraction, whenever ray of light suffers refraction and change in medium takes place, and change in medium takes place, both speed as well as wavelength will change. Both speed as well as wavelength will change, but the frequency remains unchanged. But the frequency remains unchanged. That is, in denser medium, both speed of light and the wavelength of light decreases, but the ratio of Just repeat कर दो कि denser medium both speed of light both and speed of light and the wavelength of light decreases, but the ratio of speed and wavelength remains constant. There is no change in phase. There is no change in phase of the wave whenever it suffers refraction. ये मैंने अभी लिखा दिया because इसको मैंने next chapter में use करना है. There is no change in phase which takes place whenever wave suffers refraction, because अभी हम ray पढ़ रहे हैं, बाद में इसी को wave context में भी दोबारा से laws of refraction पढ़ेंगे.
can write laws of refraction. सर लास्ट Laws लाइन of रिपीट कर दो. क्या चीज? लास्ट लाइन रिपीट कर दो. There is no change in phase on refraction. Next is laws of refraction. First law. The incident ray, refracted ray and normal. Incident ray, refracted ray and normal. All three lie in the same plane. सर एक बार रिपीट कर दो इंसिडेंट रे. Incident ray, refracted ray and normal. All three lie in the same plane. And the plane is perpendicular to interface separating the two mediums. Plane is perpendicular to interface separating the two mediums. सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो. And the plane is perpendicular to the interface separating the two mediums. Interface separating the two mediums. Interface separating the two mediums. Second law or Snell's law. Second law or Snell's law. So you can write the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and this constant is equal to relative refractive index of second medium with respect to first medium. Relative refractive index of second medium with respect to first medium. There is फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, सेकेंड मीडियम इज μ2. Snell's law is sin I by sin R. This is constant. Or you can say so this relation basically implies that
मैं यहाँ से भी प्रूफ कर सकता था कि light moving from rarer to denser bends towards normal. So this is the case of light moving from denser to rarer. This is light moving from rarer to denser. Rarer to denser जाएगी तो I ज़्यादा होगा, denser से rarer जाएगी तो R ज़्यादा होगा. Next is refraction through slab. ये clear है सबको? Next is refraction through slab. Diffraction through slab. हमने इसमें lateral displacement निकालनी होती है. Lateral displacement like अगर मेरे पास एक glass slab है, light is moving from air to glass. Say the other medium है. This is some denser medium. इसका refractive index mu. अगर हम path की बात करें, light is incident on first surface. अगर slab ना होता, this will be the path followed. ये normal first surface पे, so first surface let it call it say AB. Light moving from rarer to denser, it should bend towards normal, away from normal. Towards normal. Towards normal. तो इसका जो path होना चाहिए था light का, that should be towards normal means कि towards normal bend करेगी. अब second surface पे ये normal है and light is moving from Denser. away from normal. denser से rarer, तो it bends away from normal. ये जो rays हैं ये हमेशा parallel होंगी because ये surfaces parallel है. ये angle I ये R तो ये भी R, and this will be I. हमने ये distance निकालना होता है, lateral displacement. कि ये distance कितना है? RT distance, ये कैसे निकाल सकते हैं? The value of RT. तो ये एंगल कितना होगा? ये I, ये I R. minus R. This would be I minus R. ये मैंने perpendicular distance लिया है. In triangle QRT,
साइन आई माइनस आर किसके इक्वल है? साइन आई माइनस आर RT over RQ. आर टी ओवर RQ. आर क्यू। बेसिकली आर टी निकालना है, तुम्हें बस आर टी आ गया, आर क्यू इंटू साइन आई माइनस आर। पर हमें आर क्यू भी नहीं पता, तो हम एक ट्राइंगल और लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू ई आर। कॉस आर किसके इक्वल है इस ट्राइंगल में? T over RQ. कॉस आर इज T over RQ. मतलब टी बाय आर क्यू। तो आर क्यू कितना आ गया? T over cos R. ये वैल्यू इधर डाल देते हैं, हमारे पास आर टी आ गया। तो अगर आपको आई और आर पता है, आप निकाल सकते हो। आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो अगर, बोर्ड में तो इतना चल जाएगा स्कूल एग्जाम्स के लिए, पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन आई माइनस आर कैन बी रिटन है साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। फिर रेशो ले सकते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो सारा मैथ्स चलता रहेगा आगे कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे आया। डायग्राम देखो और यहाँ तक देखो, ये समझ आ रहा है कैसे किया? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. डायग्राम बना लो। ये स्कूल के आर्टिकल्स करा रहा हूँ आज मैं, कॉम्पिटिटिव वाला काम नहीं है। सैटरडे को सुबह शाम दोनों टाइम हमने कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स किए थे, तो ये स्कूल वाला काम है। तो डायग्राम बना लो सिर्फ अभी, बिकॉज इसके ऊपर स्टोरी लिखनी पड़ेगी पहले सारी। सिर्फ डायग्राम बना लेना, देन रेट डायग्राम बन जाए तो। In heading you can put lateral displacement through slab. Lateral displacement through slab. ये सबको समझ आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम क्यों होंगे? मैंने जो इंसिडेंट और फाइनली रे बनाई है, उन दोनों को पैरेलल बनाया है, इंसिडेंट और फाइनल डायरेक्शन को। तो व्हाई दोस टू एंगल्स शुड बी सेम? अगर मैं इसको डिफरेंट ले लूं, लेट इट से एक बार ये अज्यूम कर लेते हैं ये आई नहीं है, आई डैश है या ई है। मान लो ये ई है, या एंगल फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या बनेगा? इधर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो म्यू की दोनों वैल्यूज इक्वेट करोगे तो आई और ई इक्वल आ जाएंगे। सो इट विल ऑलवेज बी ट्रू कि फाइनल रे हमेशा इनिशियल रे के पैरेलल ही निकलेगी। So you can write, consider a glass slab. Consider a glass slab of thickness T
and refractive index of thickness T and refractive index mu placed in air. A monochromatic light. मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया मोनोक्रोमैटिक? मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है? सिंगल वेव सेम फ्रीक्वेंसी। तो क्यों मैं सिंगल वेवलेंथ लेना चाहता हूँ? मतलब क्या स्प्लिट हो जाएगी, मतलब काफी सारी बिकॉज डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होते हैं। आपने जैसे प्रिज्म में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं एक कलर की लाइट ले रहा हूँ सिर्फ, और जो म्यू है वो भी बेसिकली लैम्डा पे डिपेंडेंट होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ लूंगा तो लैम्डा भी अलग अलग आ जाएंगे, सॉरी म्यू भी अलग अलग आएंगे। सेकेंड राइट, कंसिडर अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. Consider monochromatic light. The incident at an angle I on the first surface AB of glass slab. On first surface AB of glass slab. First surface AB of glass slab. As the light is moving from, sorry, nearer to denser medium, as the light is moving from nearer to denser medium, it bends. It bends. Towards the normal, making angle of refraction R. Using Snell's law at first surface. Using Snell's law at first surface, sin I by sin R is mu by 1. Because mu 2 by mu 1 है. Second medium का refractive index mu है, first medium air है तो उसका 1 है. The refracted light QR, मतलब ये वाली light, refracted light QR for the first surface AB. Refracted light QR for the first surface AB acts as incident light for the second surface CD. Acts as incident light for the second surface CD. साइन आया और साइन आर के बाद क्यों बोला था? वो तो बोर्ड पे लिखा है म्यू बाय 1. उसके बाद The refracted light for first surface acts as incident light for the second, making angle of incidence I. Using Snell's law at second surface CD. Some making angle of incidence. क्या चीज? Second surface CD making angle of incidence के आगे क्या बोला था? देखो आपको क्वेश्चन नहीं सुना, दोबारा पूछो. सर CD making angle of incidence के आगे आपने बोर्ड पे लिखा है और भी कुछ बोला था? बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है. ये सारा नोट कर लो.
So you can write as angle of emergence and angle of incidence are equal. As angle of emergence and angle of incidence are equal, it implies that. It implies that incident and emergent ray are parallel to each other. Incident and emergent ray are parallel to each other. But there is a lateral displacement delta. Delta is this. But there is a lateral displacement delta. Which can be found by dropping a perpendicular from point R in the direction of, by dropping a perpendicular from point R in incident direction. Dropping a perpendicular from point R in incident direction. If deviation suffered at first surface is I minus R. If deviation suffered at first surface is I minus R, then in triangle QRT, फिर ये नोट कर दो बोर्ड से. So T by cos R sin I minus R. इसमें दो स्पेशल केस कई बार आ जाते हैं. मेरे को इन दोनों में रिजल्ट बताना क्या आएगा. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को लूं, say if angle of incidence tends to 90, it's not 90, tends to 90, तो डेविएशन क्या होगी, एंड इफ इट टेंड्स टू 0 तो क्या होगी. If angle of incidence tends to be 90, तो आंसर क्या आएगा, एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टेंड्स टू 0, मतलब एक केस में ऑलमोस्ट 90, एक केस में ऑलमोस्ट 0, तो आंसर क्या आएंगे. करो सॉल्व इसको. सही, आई को कॉमन लिया बस, एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज
because if I and R are small, तो साइन आई को आई लिख सकते हो, साइन आर को आर लिख सकते हो, तो आई बाय आर इज म्यू, तो आर बाय आई इज 1 बाय म्यू। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, इसलिए मैंने कहा था सेकंड केस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फॉर्मूला। इनफैक्ट जो हमने पहले ड्राइव किया स्पेशल केस यूज होता है, वो तो मैंने इस पे आज तक न्यूमेरिकल नहीं देखा इस फॉर्मूला पे। इस पे नहीं आते न्यूमेरिकल एग्जाम्स में, बुक में मिल जाएंगे पर कभी आएंगे नहीं, हमेशा इस केस पे आते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, इसको क्या करें, आई टेंड्स टू पाई बाय 2, इस केस में क्या होगा? इफ आई टेंड्स टू पाई बाय 2, कैसे करें? सर टी के बराबर ही आ जाएगी। कैसे टी के सर बराबर कैसे है? साइन आई माइनस आर को एक्सपांड किया, तो उसके बाद फिर साइन आई को 1, कॉस आई को 0 लिया, तो फिर उसके बाद कॉस आर कट किया। कॉज ए कट गया। चलो मैं आपका मेथड करता हूँ, मेरे को बताते जाना क्या करना है। वैसे आप कह रहे हो साइन आई माइनस आर को एक्सपैंड कर दें, तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। इसके बाद सर साइन आई को 1 लिया और कॉस आई को 0। इसको एक बार एक स्टेप और कर देते ना बीच में। इफ आई टेंड्स टू 90, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? और ये 0। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ग्राफ प्लॉट कर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कब है, जब आई टेंड्स टू 0 है या आई टेंड्स टू पाई बाय 2 है? I tends to pi by 2. तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे वो इस तरह से बनेगा। जब आई 0 है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी, जब आई की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी टी के इक्वल। नेक्स्ट टू राइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था आपने 10th में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे समझो, डायग्राम बनाता हूं मैं। स्नेल्स लॉ है कि साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती तभी है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। रेयरर से डेंसर कभी भी नहीं होगी। मेरे पास ये लाइट है, इट्स इंसिडेंट ऑन सम सरफेस,
अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा या इंसिडेंस ज्यादा होगा? refraction. Because it bends away from normal. ये I1 या R1 मैं अगर बिकॉज साइन I बाय साइन R कांस्टेंट है, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर एंगल पे आके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। इस एंगल को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज किया क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा, तो वापस आ जाती थी उसमें। so if I4 is greater than IC, the ray gets reflected back into the same medium, वापस ऊपर ही चलेगी डेंसर में। So this phenomena of reflection of light, phenomena because ये reflection हो रही है, refraction नहीं हो रही, यहाँ पे laws of reflection obey होंगे। This phenomena of reflection of light moving from denser to rarer when angle of incidence is greater than critical angle is known as total internal reflection. इसका practical example दे सकते हो कोई? सर रेनबो। रेनबो। और यूज मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब यूज जहाँ यूज होता हो फिनोमेना। So hot summer days में रोड वेट लगती है दूर से। मतलब मेरे को ये बताओ, रेनबो बने ना बने, मिराज फॉर्मेशन हो ना हो, आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा है इससे? अगर रेनबो पूरा साल नहीं बनेगा आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाने वाला? मैं कह रहा हूँ यूज, रेनबो का क्या यूज करते हो आप? यहाँ सड़क पे मिराज फॉर्मेशन है, आपको सड़क पे पानी नजर आता है, उसका हमने क्या करना है? नहीं भी नजर आए तो क्या फर्क पड़ जाने वाला मेरी लाइफ में? प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हो इन चीजों का? रेनबो को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी ये फिनोमेना बना होगा, इसका कोई यूज भी तो किया होगा ना हमने फिजिक्स में। आपके घर में पहले जो कनेक्शन आते थे फोन के, दे यूज्ड टू बी कॉपर वायर्स के थ्रू। अगर आपने अपने घर में पुराना लैंडलाइन फोन कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपके घर में कॉपर वायर आती थी और उसको कनेक्ट करना बहुत आसान होता था। सिंपल दो वायर्स होती थी, दो स्क्रूज लगे होते थे उनमें, वो लगा दो, वो कनेक्शन हो गया। करंट फ्लो करती थी, करंट के थ्रू आपका डेटा आता था। पर आजकल अगर आपके घर में कनेक्शन है तो वो किस तरह के हैं? आप उनको कौन सा कनेक्शन बोलते हो? ऑप्टिकल ऑप्टिक्स। फाइबर। तो फिर ऑप्टिक्स कहीं आ रही है ना, वो कहाँ कैसे? ये जो बोलते हैं हम जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, जिसका आपको फायदा मिल रहा है कि आपकी कुछ पढ़ाई तो हो रही है, मे बी उस तरह से उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी ऑफलाइन में हो जाती थी, बट फिर भी कुछ पढ़ाई हो रही है। बट अगर ये कनेक्शंस ना होते, अभी भी कॉपर कनेक्शंस चल रहे होते और कोरोना आता तो कोई क्लास भी नहीं लग पानी थी, मतलब ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं लग पानी थी। वो बफरिंग होती रहती, वो जो आपने कई बार नोटिस किया होगा वीडियो में, वो गोल गोल घूमता रहता है, बफरिंग चलती रहती। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसमें दो पार्ट्स होते हैं जो हम बोलते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन किया। मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर, इट्स वेरी थिन, मतलब 1 मिलीमीटर भी इसका डायमीटर नहीं होता। इसमें ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, एक बार वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, ये बेसिकली आउटर पार्ट को, और इसको बोलते हैं कोर। कोर होता है डेंसर मीडियम, क्लैडिंग होती है रेयर मीडियम।
कोर इज ऑलवेज डेंसर। अब मान लो यहां से एक लाइट आई and this is incident at angle greater than critical angle. So when it moves from denser to rarer, it bends away from normal. ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी, वापस इधर आ जाएगी। ये इस फाइबर के अंदर रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंड, तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इधर इमेज बन जाएगी। अब मेरे को अभी तक जितने आपने फिजिक्स पढ़ी है उसके हिसाब से बता सकते हो ऑप्टिकल फाइबर में हाई डेटा स्पीड कैसे पॉसिबल है और कॉपर वायर में क्यों नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अच्छा, तो मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट के कारण है सारा फंडा। कॉपर वायर है, उसकी रेजिस्टेंस होती है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हिच टेक्स प्लेस। यू कैन नॉट हैव लार्ज करंट्स, एनर्जी लॉसेस होंगे, डैम्पिंग हो जाएगी सिग्नल की, faithful transmission of data will not take place. तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर्स के लिए, अब ये तो लाइट है, आपके घर में तो लाइट नहीं आ रही। लाइट घर में कौन सा सिग्नल आया? आपके लैपटॉप में जो गया, दैट्स नॉट लाइट, बिकॉज आपका लैपटॉप लाइट को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बना। तो आपके लैपटॉप में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही आया होगा, इलेक्ट्रिकली आया होगा ना, करंट ही आई होगी लैपटॉप में। तो लैपटॉप में थोड़ी लाइट सिग्नल सेंड कर देंगे, तो वो कन्वर्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के। आपने जब डेटा सेंड किया तो भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो से मेरे माइक से तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही गया था, बट उसको ट्रांसफर करने से पहले उसको लाइट सिग्नल में चेंज किया होगा, तभी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जाएगा। मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, यू कांट सिग्नल ऐसे डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो सकता, यू हैव टू मिक्स इट विद सम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, फिर उस हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को अलग करना होता है। दैट प्रोसेसेस आर नोन एज। ये सारा कुछ कौन कर रहा है? आपके घर में जब केबल आई, सबने बेसिक कनेक्शन देखे होंगे, केबल आई तो सीधा आपने लैपटॉप में तो नहीं डाली, पहले किसी और डिवाइस में गई होगी। मॉडर्न मॉडर्न मोडम, मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो वो ये सारा काम कर रहा है। अब आपका जो नॉर्मल पुराना मोडम था, फाइबर मोडम, उससे डिफरेंट आए हैं, यस बिकॉज पुराने मॉडर्न में लाइट सिग्नल के लिए नहीं बने थे, लाइट सिग्नल के लिए बने। इनको कन्वर्ट करना आता है लाइट सिग्नल्स को। सो हम कन्वर्जन्स के थ्रू ये सारा कर रहे हैं, और बिकॉज रिफ्लेक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, all the energy which is incident gets reflected when it moves from core to cladding. There is no loss of energy because current flow करे तो resistance का concept आता है जिससे loss of energy होता है। इसमें क्योंकि लाइट को यूज कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, एनर्जी लॉसेस मिनिमम होते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है बट क्रिटिकल एंगल से कम एंगल हो तो बाहर वो निकल ज्यादा ही जाता है। होता है, मतलब डिफरेंस इतना रखा होता है कि वो ज्यादा ही होगा, उसकी चिंता नहीं होती। बट नॉर्मल अगर आपका कभी पुराने टेलीफोन सिग्नल्स खराब होते थे ना, तो कोई भी वो नॉर्मल सा एक लाइंसमैन आता था, वो उसको जोड़ जाता था। दिस रिक्वायर हाई एंड टेक्निकल नॉलेज फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की जब बात आएगी। एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल ऐसा नहीं है कि सब कुछ सैटेलाइट्स के थ्रू ही चलता है। जैसे यूएस है तो यूएस, इंडिया में तो भी पूरा ऑप्टिकल नेटवर्क